On the line of that, this is the second series of the lecture is going to give by the Mr. Hiren Kakkar. So I welcome Mr. Hiren, the CEO of State Modeler, Thank you, sir. on behalf of the Department of Statistics. And now I request you to please share your views on the webinar on the project charter, the heart of the project. Thank you. Sure, sir. Thank you. Thank you so much for warm welcome. Now, let me share my screen first of all. Yeah, please. I request everyone to please mute microphone so that disturbance can be avoided. Okay. Is my screen visible? Yes. Okay. 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 Thank you. So, before moving for the core session, I would take 4 to 5 minutes to introduce our company. So, basically, our company name is State Modeler, and we found this company in 2019, last year. And on this 1st November, we are completing our 1 year. And during this entire session, I also would like to share my experience throughout this 1 year. So, as and when required, I'll be sharing my experience. So, that might be helpful to you. And these are some of the areas where we are working. So, one is data science. Currently, it is in the buzzword of, like, data science is the buzzword for the century, you can say, where we are talking about this machine learning and artificial intelligence and all. So in that line, we are providing training and consultancy services for this machine learning, R, Python, SPSS, Minitab, Power BI, Tableau, Excel, and many more. Like, under the umbrella of data science, whatever tools and techniques are there, for that we are providing training as well as consultancy. The second domain is where we are working is operational excellence, because it is also that much important in the industries, that whenever they want to do improvement, they need some approach for the operational excellence. So we basically create a blended approach for our client with respect to this operational excellence concepts, so that implementation can be fast. Or if you can go along with only Six Sigma or only Lean or only 5S, then its implementation time for the improvement may be a little larger. But if you go with the customized one, then it will improve that speed of implementation. And in current economy, the speed is more important. Like, how fast you can reach to your customer, how fast you can achieve your goals, how fast you can improve. So all that, speed is important. So that will this blended approach will help in that. And then we are also sharing our expertise for the research projects. So it may be a government sponsored, it may be a university sponsored, or it may be some private companies or private organizations that they're doing the research projects. So in that also we are helping them. And the last one is universities and colleges, where we are collaborating with those organizations like universities, colleges, and institute. And then we are conducting workshop, training programs, certification courses, and webinars for the faculty as well as students. And these are some of the areas where we have provided our services. So these are, you can see, it is wide varieties. Like, it is not only in a fixed area. So what it indicates is, like, whatever services that we design, like data science, operational excellence, research projects, so it doesn't have specific segment, like it is only applicable to this segment. It is not like that. It is applicable everywhere. There is some agroeconomics is also there, and there is pharmaceutical sciences are also there, and there is chemical industry is also there, and plastic process industry is also there, whereas marketing management is there. So they are all in a different direction, different location, different area, but all these things are applicable over there. These are some of the snaps of the programs that we delivered, and I'll be sharing this presentation with you. So I'll be sharing the link to download this presentation during the session, so you can have this. And these are the online training that we conducted till the September, and after that also it is continuously going on. And this is our team. Again, I can proudly say this all are the product of Department of Statistics, Sardar Patel University. So Hiren Kakkar, myself, I'm as a CEO and co-founder of this company. Then Mehul Gandhi, who is business associate with us. Saurabh Chaudhary, you all might be knowing him. So he is also business associate with us. And Kapil Vanand, who is operating from UK. He used to be my classmate. He and Mehul both.
So he is currently operating from London, UK. So he is also business associate with us. And Mr. Lalit Alone, he recently joined as a business associate with us. So you might be knowing him also. So proudly, I can say this is the team of Department of Statistics that we are, taking this venture to the next level. Now we'll jump into the core, topic that we planned today, that is project charter. Now, before moving for the project charter, we need to understand what is project management, what is project, and what are the types of project management tools are available, so that we can first look at it, and then we'll jump into the one of the part of the project management, that is project charter. So in project charter, first question is that what is project? So there is some definition of the project. So the definition is something like this, that if we simply tell this, then the project is a series of tasks that need to be completed in order to reach out or reach a specific outcome. That means whatever goal is there, that some specific goal is we have decided, and to achieve that goal we have series of tasks. So for example, I'll give some of the different examples. So QP is there, applied statistics is there, and pure statistics is also there. So I'll try to give all three examples. So first for the QP. So for example, the project is taken to reduce rejection, right? So to reduce rejection, that is the project that we have, or that is the goal, that is the outcome that we want to achieve at the end of the project. Or it may be improve the productivity, right? Now to achieve that, you have to perform certain tasks. Now what is task and all that is depend upon the what approach that you are following, but there is some series of tasks that you need to follow, right? So those tasks is if you arrange it in a sequence and then you achieve that goal, so that is simply called a project. So that is the simple definition. Now if I go for some like applied statistics and pure statistics students, so you might have a objective of, let's say, to develop some model, right? So you want to develop some model which can predict, let's say, revenue for some organization. So that is the outcome that you are aiming for. At the end of this entire activity, you need to achieve, you need to develop one model which can be useful for that organization. Now to do that, you need to perform so many tasks. Like you need to collect the data, you need to clean up the data, you need to let's say apply some of the you need to check some of the assumption, then you have to apply some of the tools and techniques. So all this task or the series of tasks are there, so that you need to follow. So that is also one of the project. Let's say if you want to do some research, in that research also you have some objectives. So those objectives are listed there, and then you, in line with that objective, you are performing your research work. So that is also a kind of a project, right? So that is basically the project is where some tasks are there, some objective is there. Without objective there is no project, क्योंकि project के end में कुछ ना कुछ हमें achieve या outcome होना चाहिए, right? So that is the minimum requirement, that it should have some objective. It also can be defined as a set of inputs and outputs which is required to achieve a particular goal. So this is another definition that you can look at it. Otherwise, आप अगर इसको इसका crux समझेंगे, then it is quite similar, but it is written in a different language. Now this project can be ranged from simple to complex and can be managed by one person or 100 person. So project का जरूरी नहीं है कि project जो है वो सिर्फ 5 लोगों से होना चाहिए या 7 लोगों से होना चाहिए. It depends on its nature. Now this nature is what? So it may be a simple project, it may be a complex project, it may be a midway project, right? So according to the complexity, according to the approach that you are following. So for example, if you are following a Six Sigma approach, then 5 to 7 people is the ideal team size for the Six Sigma project. But let's say Agile and Scrum is there, then the size is different. So it depends. Let's say आप अपना research कर रहे हो, तो उसमें कोई इतना बड़ा team नहीं होगा शायद. उसमें it may be like 1 person or 2 person. It would be like this. And basically जब ये project management हम industry में करते हैं, तो उस time पे there are some manager, project manager is there, and they are basically they what used to do. So they used to monitor the progress of the project, and they delegate those tasks to that subordinates. So that is how this project is working. Now if you look at the project management, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि project क्या होता है उसको हमने समझने का try किया. Now what do we mean by the project management? So project management is the process of leading the work of a team
to achieve those goals which we have decided, right? And meet success criteria at a specified time, because it should be time bound. और एक जगह पे मैंने रीड भी किया था कि प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एक्टिविटी. नाउ थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगा, बट आप अगर उसका सही से डेफिनेशन समझेंगे तो प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एक्टिविटी, कि एक टाइम बाउंड है कि हमने 3 महीने का प्रोजेक्ट लिया, 6 महीने का प्रोजेक्ट लिया, एंड विद इन दैट time bound we have to complete that project. So that is why it is called temporary activity, because there is some time period कि within this time you have to complete that project. Now if you don't decide that timeline, then it will go for the पंचवर्षीय योजना, like कभी खत्म ही नहीं होगा. आपका वो गोल है, हाँ वो अचीव करेंगे, इस तरीके से आएगा. But if it is not having that specific timeline, then it is not said to be a good project management practice. The primary challenge of the project management is to achieve all the project goals within a given constraint. So here I have highlighted with the red color because I'm talking about the constraint. So which might be affecting our progress of the project. So now constraint can be different in different areas. So हम operational research में भी एक ये constraint जो है वो पढ़ते हैं. ठीक है. There is another theory which is called theory of constraint, TOC. That is also one of the famous theory when we go for the industrial application. Now constraint क्या हो सकते हैं? So there are several constraint can be there. Like जब आप project execute करते हो तो उस time पे let's say budget is one of the constraint. Nowadays in this scenario where companies were stopped for 3 months during this lockdown, और अभी जाके उनको बोलते हैं कि ये project करते हैं improvement का, and then in that you have to invest this much of money, then that is the first constraint, that we don't have budget. Right? या फिर हमारे पास बहुत ही limited budget. So within those constraints, how can we effectively execute this project? That is the art of project management. Now it may be like constraint can be the people. बहुत बार हम कंपनी में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम सब कुछ अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वी कैन पे यू एज अ कंसल्टेंट, बट हमारे पास मतलब इतने लोग नहीं है कि जो आपको इतना टाइम दे सकेंगे. सो देयर दैट ह्यूमन रिसोर्स इज द कंस्ट्रेंट. सो वी हैव टू डील विद दैट, वी हैव टू प्लान विद दैट कि भाई वहां पे पता है कि ये लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे, फिर भी वहां पे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है. सो दिस आर ऑल द कंस्ट्रेंट्स. और ये कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, इवन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करते हैं. इन सेम कंपनी, इन दिस डिपार्टमेंट दिस इज द कंस्ट्रेंट, इन दैट डिपार्टमेंट दिस इज द कंस्ट्रेंट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस कंस्ट्रेंट एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, तभी जाके हम प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे. Now if you look at the steps of the project management, then first stage, this is general idea, like जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है PMI, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन देता है, सो वहां से मैंने ये लिया है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है वो. सो दैट इज इन जनरल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एजाइल और स्क्रम, बट इन जनरल फॉर्म, what are the steps of the project management which seems to be logical? Like first, there is a conception or the initialization where we have something in our mind to start with, and then we are moving forward to defining and planning stage. So there we define the concept or the ideas that we had in a step 1, and then we make some planning about it, and then we launch it for the execution. ये सारे जो stages है ना, वो actually बहुत ही है simple, लेकिन बहुत ही important है. जैसे ये conceptualization जो है, तो उसमें देखिए आप project charter, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद हम ये जो तीसरा स्टेप है उसमें हम लॉन्च और एग्जीक्यूशन में जाएंगे. एट दैट टाइम इट विल बी फॉर्मली पुट ऑन द बोर्ड, एंड देयर वी गो एंड वी इन्वॉल्व आवर टीम टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज. एंड वंस इट इज स्टार्टेड, we go and monitor the performance and control those projects with respect to the objective and whatever deliverables that we have decided. So it is basically a kind of you can say compass, that are we in a right direction or not. So it is the fourth step that is in the project management. And at last, let's say we are towards our objective, and then at last we'll be able to achieve that. So that will be the project closure. Now project closure, the first step is written, you can see post-mortem. That means what? पोस्टमार्टम में हम क्या करेंगे कि ये जो 4 स्टेज में हमने जो भी एक्टिविटीज की है उसको हम लुक बैक करेंगे. लाइक विल स्टडी दैट कि हमने क्या किया था, what were the good experiences, what are the bad experiences, what are the learning points. So all that we will postmortem in the last stage, so that जो भी next project आएगा उसमें हम उसको initial stage से ही mitigate कर सके.
So this is how the normal project management will work. Now, there are several types of projects or project management tool, you can say, or the approaches that you can follow. The first one is like there is no, there is no superiority. ये जो मुझे जैसे सीक्वेंस में मिला है उस हिसाब से मैंने रखा है. Now it doesn't mean that waterfall is the first step or the second step is this one. So it is not in that order. So waterfall project management, agile project management, scrum project management, kanban project management, lean project management, six sigma project management, and prince 2 project management. These are all the different approaches. जिस तरीके से हमारा सिक्स सिग्मा का डीमेक अप्रोच है, वैसे ही लीन का अप्रोच है, स्कोर मेथोडोलॉजी जिसको बोला जाता है, कानबान का अप्रोच है, स्क्रम का अप्रोच है, एजाइल का है, वो तो सबका है. Now, if you want to go into the detail, I have provided link over here to about this project management. So you can click on this and you can study it further. But हमारा जो आज का सेशन है वो इसके ऊपर नहीं है, इसका एक एलिमेंट है जो कि प्रोजेक्ट चार्टर, उसके ऊपर है. सो हम इसकी डिटेल में इतना ज्यादा नहीं जाएंगे. बट व्हाई आई हैव मेंशन ओवर हियर, क्योंकि ये सातों सात मेथोडोलॉजी या फिर इसके अलावा भी जो भी मेथोडोलॉजीज आपको मिलती है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती है, उसमें वन ऑफ द की एलिमेंट और द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रोजेक्ट चार्टर. Without project charter, any project will take a long time, or there may be chances of, let's say, getting delayed or fail. So that is why project charter is one of the critical element for any project. Abhi, it may be like if you are using the agile, scrum, kanban, lean, or anything. Now agile and scrum generally used for it is used by the IT industry. So whenever IT industries are there, और उनके लिए project यानी क्या, जैसे मैंने एक मेरी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का उनको ऑर्डर दिया है कि आई वांट दिस काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, सो दैट्स मेक डेवलपमेंट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोजेक्ट फॉर देम. नाउ हाउ डू दे मैनेज दैट? बाय यूजिंग एजाइल एंड स्क्रम मेथोडोलॉजी. क्योंकि उसमें क्या होता है कि देयर आर सर्टेन रिविजन्स that they have to do. So initially they have to make a blueprint of it and then submit it to the client, and then client will give the feedback, and then according to they will change, and that will be a version 2. And after that again they will send it back to the client, and then that kind of looping is going on. So it can be effectively managed by this agile and scrum. So in that they are using that, but in that also that project charter is one of the key element. So that is why we'll be talking about project charter in detail in this session. Now here जो एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो मैंने लिया है सिक्स सिग्मा के रेफरेंस में, क्योंकि हम लोग सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट आप लोग भी अभी करने वाले हैं. इंटर्नशिप चालू होगा तो आप भी ये सिक्स सिग्मा का या लीन का या ऐसे कोई प्रोजेक्ट करेंगे. सो इट इज इन लाइन विद दैट. मैं अगर यहाँ पे एजाइल का लेता तो शायद इतना यूजफुल नहीं था. सो बाय लुकिंग एट द टारगेट ऑडियंस, I have taken further examples and the details in line with the Six Sigma project management. So now in Six Sigma, there are 5 phases, as we all know, that is define, measure, analyze, improve, and control, right? So in define phase, what we used to do, we define the problem. So what is the problem? Since how long it is a problem? Where is the problem? Like what is the impact of the problem? How much is the problem? So magnitude of the problem. So these are all the answers that these are all the questions that we used to ask during this define phase. After that, there is a measure phase. Like once this problem is defined, then we go and measure the problem. So if I give you the example, like in respect of this Six Sigma, let's say in one company, they are facing the problem of low productivity, right? So लो प्रोडक्टिविटी उनका प्रॉब्लम है. अभी यहाँ पे हम सिर्फ लो प्रोडक्टिविटी करके बैठ नहीं जाएंगे, उनको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज लो प्रोडक्टिविटी? दैट मींस हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया है. लाइक जो कंपनी है उन्होंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया है कि प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाएगी, तो बोला परसेंटेज में मेजर की जाएगी. ओके, 100% इज द आइडियल प्रोडक्टिविटी, बट इन विथ रेफरेंस टू दैट दे आर गेटिंग सम डिफरेंट रिजल्ट which is not as per the expectation. So let's say they are able to achieve 60% प्रोडक्टिविटी, राइट? सो कब तक से ये हो रहा है प्रॉब्लम? तो बोला लास्ट 6 मंथ से ये प्रॉब्लम है. ओके, इससे क्या प्रॉब्लम? लेट्स से इसको हम प्रॉब्लम ही ना गिने, राइट? तो क्या फर्क पड़ता है? तो बोला नहीं कंपनी का इतना नुकसान होता है क्योंकि हम हमारा जो 100% कैपेबिलिटी है उसके सामने सिर्फ 60% अचीव कर रहे हैं. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 40%, राइट? So that we need to achieve. So that is the magnitude of the problem that we are talking about. So all these answers that we give it in a defined phase. After that we are measuring it. क्योंकि आप बोल रहे हो कि 60% है, लेकिन is it proved by the data?
So what we can do, we can go and collect data of last 6 months or last 1 year and see the pattern, that is it coming 60% or it is just by just the data of last 2 months की जो सिर्फ 2 महीने से ही वो 60% है, बाकी पहले कुछ पिक्चर और था. So that is all we verify in the measure phase. So basically measure phase, what we do, we try to measure the gap between reality and the expectation. After that, we go and analyze the problem. So where we are trying to find out the causes, root causes, and then we perform some cause validation, and we have a listed of verified causes. So that is all the activities of analysis will be performed during this phase. So basically ये gap जो है 60% or target is 100%. So why there is a gap? What are the reasons for that? So that we are basically finding out in this analyze phase. And once these reasons are found and it is shortlisted, after that we go for the improve phase, where we are talking about identifying the solutions, how to implement it, what are the consequences of the solution. क्योंकि solution identify करने के time पे there is a huge investment is associated with it. Also some of the risk are associated with it. For example, अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें they are developing a solution. That is solution is what? Vaccine. बट वो वैक्सीन के साथ साथ बहुत सारे लाइक कॉन्सिक्वेंसेस भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है. सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम ये सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके साथ साथ भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हुए हैं. सो उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू मूव फर्दर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. And after that we have to go for the control phase. That means whatever result that we have achieved. So for example 60 से 100 तक जाना था हमको, लेकिन हम 95 तक जा पाए हैं. So that is also a good start, or let's say that is also one of the good achievement we can say. Now it's time to sustain at 95. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक ये प्रोजेक्ट चला तब तक 95 आ रहा है, जैसे ये प्रोजेक्ट हमने क्लोज किया आफ्टर दैट अगेन वो 60 में चला गया. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द प्रैक्टिस, वी हैव टू डिजाइन अ कंट्रोल मैकेनिज्म. सो ऑल दिस वी नीड टू डू. So this is how this Six Sigma project will work. Now there is a roadmap of the project charter, roadmap of the Six Sigma project. So you might be knowing all these things. So in define phase we have to do the project scoping, क्या project में लेना है. Now it should be always defined. Then what is we have to develop a project charter. What is the business impact? What is the voice of customer? What is the critical to quality parameter? We have to also understand the Plano model. Right, so this is all the aspect of define phase. Then in measure phase what we need to do? We need to do the process mapping, like as is map जिसको बोलते हैं कि अभी का हालत क्या है. ठीक है. So that is the process mapping that we need to do, and then we have to collect the data. So in line with the objective that we set during the define phase, in line with that we have to do the data collection, and then we need to perform MSA if required. Then we have to use control chart. We can find out the process capability, CP and all, and then we also can find out yield in some of the cases. जैसे मैं अभी एक recent एक कंपनी में गया था, that is chemical company. In that yield is most important. उनके लिए प्लांट में yield जो है वही सबसे important है. तो उनके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो yield के इनलाइन ही होते हैं. So in that chemical, pharmaceutical, ये सब में yield ज्यादा important है. And then ultimately we calculate the baseline. Baseline यानी current level, right? So अभी का level क्या है? So that is the baseline we can say, and that is what we are measuring in a measure phase. In analyze phase, what we are doing, we perform some of the graphical analysis because we did data collection. Now we have to perform some of the graphical analysis to shortlist some of the things कि कहाँ से start करें, reason में देखना है तो. And then we go for the cause and effect diagram, cause and effect matrix, FMEA, hypothesis testing, and ultimately we validate those causes. And after that we go for the improvement phase. In that we identify the solution, prioritize the solution. जैसे आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है तो देयर आर मल्टीपल वेज. यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं. नाउ व्हिच वन इज द बेस्ट वे, जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, हम जल्दी पहुंच पाएंगे, रिस्क भी नहीं है. सो इन दैट वे यू हैव टू प्रायोरिटाइज द सॉल्यूशन आल्सो, क्योंकि एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. सो यू हैव टू मेक प्रायोरिटाइजेशन. अभी वहां पे प्रायोरिटाइजेशन के क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट पार्ट है, इम्पैक्ट पार्ट है, देन लेट्स से बेनिफिट का पार्ट है, टीम का एफर्ट कितना जाएगा वो पार्ट है. सो दिस ऑल यू नीड टू कंसिडर व्हाइल प्रायोरिटाइजिंग द प्रोजेक्ट. एंड देन वंस दिस प्रायोरिटाइजेशन हैज बीन डन, यू नीड टू कंडक्ट सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अभी तक हमने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया है. नाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट इन सम ऑफ द एरियाज. डायरेक्टली 100% इंप्लीमेंटेशन में नहीं चले जाएंगे.
एक मशीन लेंगे या एक छोटा सा एरिया लेंगे जहां पे हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड देन विल हैव अ बिफोर आफ्टर कंपैरिजन। उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड देन वी कैन गो फॉर द फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन। एंड देन इन कंट्रोल फेज व्हाट वी आर डूइंग, सो वी हैव अ प्रोसेस मैनेजमेंट प्लान कि इसको अभी हमने जो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाए हैं उसको रूटीन में कैसे मेंटेन करेंगे। अभी ऑपरेटर फिर से पुरानी मेथड में नहीं चला जाए, उसके लिए क्या करना है। सो फॉर दैट वी कैन गो फॉर द मिस्टेक प्रूफिंग, वी कैन डिजाइन एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एंड देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर द ऑडिट मैकेनिज्म। सो वी कैन डिजाइन लाइक वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली ऑडिट। जो भी हमने चेंजेस सजेस्ट किए हैं या जो भी चेंजेस हमने अप्लाई किए हैं उसके लिए हमें ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई दैट कि वो उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। And then at last we can summarize this with the project summary, like what is the ultimate benefit and what are the lessons that we learned and where this can be applicable at other places. So this will be an entire roadmap of the Six Sigma implementation. Now, why we are talking about this project charter? So as you can see, or as I also mentioned that, just a second. Okay, so as we already have seen some of the different project management techniques. So in all that, this project charter is compulsory, you can say. Now if somebody is not using it, then it's their problem. Otherwise, project charter for any project, whether it is lean, whether it is Six Sigma, whether it is agile or scrum, or it may be a Kanban project, it is compulsory, and that is why we are talking about this single element, right? Now what is project charter? So basically it contains some of the element or the some of the information. Now there are 8 elements which is must as far as the Six Sigma is concerned. Now for other projects some more information would be there, in some other technology, some other technique, some less information must may be there. But ideally ये क्या करता है? So basically हमने ये project क्यों लिया है? Like अगर मैं मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट चार्टर दिखाऊं तो उनको पता चलना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, why it is important for the company. So वो सारी चीजें हम ये प्रोजेक्ट चार्टर के थ्रू उनको कन्वे करना चाहते हैं कि क्योंकि जब भी आप ये इंडस्ट्री में जाएंगे तो जो मैनेजमेंट होंगे वो आपका पूरा ये प्रेजेंटेशन शायद नहीं भी देखेंगे जो आपने बहुत डिटेल में 100-150 स्लाइड का बनाया है, या फिर आपने जो एनालिसिस करके पूरा वो रिपोर्ट बनाया है, तो वो उनके लिए काम का नहीं है, वो हमारे लिए काम का है, क्योंकि उससे हमें अल्टीमेटली सजेशंस देने हैं, रिकमेंडेशंस देने हैं, कंक्लूजन करना है। बट उनके लिए वो इतना, क्योंकि मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे 10 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन और वो हर एक के 100 स्लाइड्स है, तो वो क्या 1000 स्लाइड्स पढ़ेंगे? उतना टाइम नहीं होता है उनके पास। उनको सिर्फ 1 पेज में इंटरेस्ट है, उनको जब भी रिपोर्ट चाहिए तो वो जनरली दे प्रीफर 1 पेजर। तो इसीलिए डैशबोर्ड वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल्सो 1 पेजर। एक पेज में हो सके उतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम उसमें दिखा सके। सिमिलरली यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर में भी इट इज जनरली अ 1 पेजर। एक ही पेज में या एक ही स्लाइड में आप सारी जो सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्ट की वो आप दिखा सको। नाउ सिग्निफिकेंस के लिए ये 8 एलिमेंट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जब भी हमें, और ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ दैट इज इन लाइन विद द सिक्स सिग्मा। सो द फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट और द बिजनेस गैप, राइट? व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। सो इसमें कुछ एक क्वेश्चन है हमारे कि जो हमें आंसर देने हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, when, यानी since how long, कब से है ये प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज हाउ मच, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन के अगर आप आंसर करते हो, राइट, और इसका इम्पैक्ट क्या है, अनदर वन, फिफ्थ वन इज इम्पैक्ट, दैट इज फाइनेंशियल इम्पैक्ट जनरली। सो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप करते हो तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो इफेक्टिवली बिल्ड होता है, ठीक है? इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बिजनेस गैप। व्हाई? बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, उसके सामने हम सिर्फ यही अचीव कर पा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस गैप। अभी समटाइम क्या होता है कि लाइक लोअर इज बेटर, समटाइम हायर इज बेटर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, my target is at this place which is 100%, but I am achieving only 80%. So this is the gap. यहाँ पे जितना मैं बढ़ाऊंगा प्रोजेक्ट के थ्रू, ये पर्टिकुलर फिगर को मैं जितना इंक्रीज करूंगा वो हमारे लिए अच्छा है।
But let's say if I'm talking about rejection, then our target is let's say 0% or let's say less than 1%. और अभी का मेरा लेवल जो है वो 10% है, तो it is called gap. और यहाँ पे क्या है, lower is better, यानी ये फिगर से हमें रिड्यूस करना है, right? So we must be clear about higher is better or lower is better. So that clarity is also required when we starting the project. The second element is the goal statement. अभी मुझे पता चला है, हम एक एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं. So let's say the problem is of high rejection. Now high यानी क्या, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि high rejection यानी, तो this problem is high rejection. So what is the problem, वो यहाँ पे हमारा आ गया. Then where is the problem? So high rejection in where में मैं लिखता हूँ कि in let's say production department 1, ठीक है. So production department 1 में मेरा high rejection का problem है. When यानी कब से है, so बोला since last 9 months. Okay, how much, कितना है, so बोला it is as high as 10%. What is the impact of it? So the impact is, let's say we are losing 10 lakh rupees per month due to this rejection. So अगर इतना आंसर आप दे पाए, इसको हम कंसाइज फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर इतना हम करेंगे, that means our problem statement has been formed. Okay, now the next statement is goal statement. तो goal statement में हमें क्या करना है कि we have to write down like what is the goal of the project. So यहाँ पे हमने 10% की बात की है. ये रिजेक्शन की बात है, तो रिड्यूस करना अच्छा है या इंप्रूव करना अच्छा है? रिड्यूस करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए. तो हमारा स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगा? टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है? रिड्यूस क्या करेंगे? रिजेक्शन. ओके, अभी कितना है अभी का? सो टू रिड्यूस रिजेक्शन फ्रॉम, यानी अभी का करंट लेवल कितना है? 10%. 10%. यहां से कहां तक लेके जाना है हमें? कहां तक लेके जाना है? 10% मतलब मिनिमम. 5%. हाँ, अभी जनरली ये टारगेट कौन देता है? यहाँ प्रैक्टिकल सिनारियो में जनरली क्लाइंट जो मैनेजमेंट होते हैं वो बताते हैं कि भाई हमारा इतना रिजेक्शन हम अलो कर सकते हैं. तो इट मे बी लेट्स से 2%, 3% और 5%, और इट मे बी मैनेजमेंट ऐसा भी बोल सकता है कि एक काम करो, लास्ट 1 ईयर का डेटा देख लो, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, उस सब में यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 ऐसा करके है, उसमें जो भी मिनिमम है दैट विल बी योर टारगेट. सो ऐसे भी बहुत बार टारगेट्स होते हैं. सो लेट्स से हमारा यहाँ पे टारगेट है लेस देन 1%. सो 10% से रिड्यूस करके लेस देन 1% में जाना है. नाउ कब तक जाएंगे? क्योंकि आगे अगर मैं बाय ऐसा नहीं लिखूंगा, then it will be a open end project. So there is no target there. Right? So by, let's say अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, by let's say February 2021. Okay, this is the effective goal statement you can say. अभी goal statement में बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं रखने हैं. मैंने बहुत सारी कंपनीज के मेरे पास जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इवेल्युएशन के लिए, तो उस टाइम पे मैं देखता हूं, तो जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा होता है या जो चीजों को एलेबरेट करने में ज्यादा अच्छे हैं, तो वो कैसे करते हैं, गोल स्टेटमेंट में पूरा एक स्लाइड रखते हैं. ये स्लाइड में पूरा छोटे छोटे अक्षरों से सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है. दैट इज नॉट इफेक्टिव वन. सी, आप ऐसा देखिएगा कि और ये ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन भी करिएगा कहीं पे अगर आप अभी कर रहे हैं तो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो नहीं देनी चाहिए. हमें कंसाइज इंफॉर्मेशन देनी है जो कम हो लेकिन इफेक्टिव हो. बाकी पूरी स्लाइड भर भर के हम कुछ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नोबडी हैज टाइम टू रीड ऑल दोस स्टफ्स. इसीलिए हमें शॉर्ट एंड स्वीट और वो कंसाइज मैनर में, लेकिन अपना पर्पस सर्व होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसे पता ना चले. अभी यहाँ से गोल इजीली हमें पता चल रहा है कि भाई एक तो हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो बोला रिड्यूस करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्या रिड्यूस करना है? रिजेक्शन रिड्यूस करना है.
कहाँ से रिड्यूस करना है, तो बोला ये करंट लेवल ये 10% है, वहां से रिड्यूस करना है। कहाँ पे पहुंचना है, तो देयर वी वांट टू रीच एट द लेस देन 1%। कब तक पहुंचना है, तो बोला ये टाइम लाइन तक। So this is very concise and I think related to the project goal, it is giving all the answers. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बनाना चाहिए। अभी थर्ड है प्रोजेक्ट स्कोप। ये हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की, लेकिन वहां पे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में देयर आर लेट्स से 3 प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, एंड देयर आर आल्सो मशीन, लाइक देयर आर 10 मशीन्स आर देयर। अभी यहाँ पे ये सबके ऊपर काम करने जाएंगे, देन इट विल बी अ ह्यूज स्कोप, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन सम फैक्ट एंड फिगर्स हमें इसका स्कोपिंग करना पड़ेगा कि भाई लेट्स से हम लास्ट 1 ईयर का डेटा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है हमारी ए, बी एंड सी, उसका हम पेरेटो चार्ट बना सकते हैं इस तरीके से, लेट्स से बी, सी एंड ए। तो यहाँ पे बी वाला है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन के रेफरेंस में हम ले रहे हैं, तो इसको हम एज अ स्कोप ले सकते हैं कि भाई हम पहले फोकस बी के ऊपर करते हैं। और सिमिलरली हम वी कैन डू दिस फॉर द मशीन कि 10 मशीन में से कौन सा हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो बोला मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 5 एंड मशीन नंबर 7, दिस 3 मशीन्स आर लेट्स से कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसको पहले प्रायोरिटी में लिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिफाइनिंग अ स्कोप फॉर द प्रोजेक्ट। और ये बहुत ही जरूरी होता है जब भी आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए जाए, तो प्लीज फोकस ऑन दिस एरिया। ये मेरे लर्निंग्स में आपको बता रहा हूँ ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है जब हम रिजेक्शन का प्रोजेक्ट लेते हैं और फिर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट होता है और हम स्कोप डिफाइन नहीं करते, तो मैनेजमेंट को लगता है कि हम उनकी पूरी कंपनी का रिजेक्शन है उसको कम कर देंगे, लेकिन पूरी कंपनी का रिजेक्शन जो है दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ एनी सिंगल प्रोजेक्ट, देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स व्हिच आर वर्किंग अपॉन इट। तो इसीलिए पहले से ही ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम ये मशीन नंबर बी की बात कर रहे हैं। फिर आप आगे जाके मुझे पूछेंगे कि भाई मशीन नंबर ए का क्या हाल है, उसमें तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि मैंने वो स्कोप में ही नहीं लिया है। सो दैट इज वाई दिस स्कोपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये बाकी आगे जाके ये आपके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं वो ना हो, उसके लिए स्कोपिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डिफेक्ट एंड मैट्रिक्स, इसकी डिटेल में हम ये सारे हम डिटेल्स में जाएंगे, जो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये जो एलिमेंट्स उसकी डिटेल में जाएंगे, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। डिफेक्ट एंड मैट्रिक्स यानी हम क्या मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, रिजेक्शन। सो दैट इज माई metric that I'm measuring. What is the defect for me? So any piece, let's say it is a production that we are doing, so any piece which is rejected, so that is defect for me. How I'm measuring this, what is the operational definition? So basically it is total rejection divided by total production multiplied by 100. So this is the clear cut formula that also we have to mention, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जनरली ये परसेंटेज का है तो बोला ठीक है थोड़ा सा इजी है, बट जब हम ये टाइम के रेफरेंस में जाते हैं ना कि भाई टू रिड्यूस रिक्रूटमेंट टाइम फ्रॉम दिस टू दिस, और वहां पे हमने ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो लेट्स से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस गिन के करते हैं। जब प्रोजेक्ट एंड में जब बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें आफ्टर का डेटा यहां से यहां तक का, यानी ये स्टेज का ये स्टेज से डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक है। तो ये जो स्टेज 1 से स्टेज 3 का जो डिफरेंस है, दैट इज माय अल्टीमेट मेट्रिक दैट आई एम मेजरिंग। बट ये अगर हम क्लैरिटी के साथ अभी नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो लोग एनालिसिस करेंगे तो ये स्टेज 2 और स्टेज 3 का वो ले सकते हैं। देयर मे बी अ चांसेस, वो इंटेंशनली भी ले सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है ये एरर। इसीलिए ऑपरेशनल डेफिनेशन क्लियरली मेंशन करना जरूरी है कि भाई स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 का जो डिफरेंस है वो टाइम की हम बात कर रहे हैं और उसको हमें इंप्रूव करना है, और कोई टाइम की बात नहीं कर रहे, हम इसी टाइम की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाला भी नहीं बात कर रहे, इसके बाद वाला भी बात नहीं कर रहे। So that operational definition has to be very much clear. इसके एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। Then customer. Now who is our customer? So now here whenever we are using customer as a word in our any project, at that time it may be internal, it may be external, right? So production department के लिए internal customer कौन है? Quality department, because production करने के बाद हम उनको hand over करते हैं,
ठीक है। तो दैट वी हैव टू मेंशन कि भाई हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कस्टमर जो है वो है क्यूसी डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है वो आप मेंशन कर सकते हो। इफ यू आर डीलिंग विद डायरेक्ट प्रोडक्ट देन यू कैन आल्सो मेंशन द एक्सटर्नल कस्टमर कि भाई इसका एंड यूजर है जो हमारा कस्टमर है। ये क्यों जरूरी है? ताकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उनसे फीडबैक ले सके कि भाई इसमें ये जो रिजेक्शन आ रहा है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इट इज एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम आ रहा है। सो वी कैन हैव दैट आइडिया कि हम किसके लिए काम करते हैं। और सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में कस्टमर इज ऑलवेज इन द सेंटर, कस्टमर सेंटर में होता है और उसके अराउंड हमारा प्रोजेक्ट चलता है। अभी कस्टमर में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल। देन फाइनेंशियल इंपैक्ट, यहाँ पे इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट होती है। बट अल्टीमेटली अगर ये मैंने 10% से 1% तक लेके गया देन व्हाट विल बी द फाइनेंशियल इंपैक्ट। सो हमने अभी देखा था कि भाई 10 lakhs पर मंथ हम वो कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1.2 crore दैट वुड बी द फाइनेंशियल सेविंग। या फिर यहाँ पे मैंने 3% का टारगेट लिया है तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। सो दैट वी हैव टू मेंशन इन द प्रोजेक्ट चार्टर इटसेल्फ। उसके बाद टीम यानी हमारी आरबी जो इसमें काम कर रही है, सो दैट आल्सो वी हैव टू केयरफुली यू नो चूज दोस टीम मेंबर, क्योंकि टीम जो होगा उसका मोटिवेशन ही हमारे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे टीम आपने सात सात की जगह पे 10 लोगों की बना दी, बट वी कैन से देयर इज अ फेमस यू नो दैट प्रोवर्ब्स दैट सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। बहुत ज्यादा रसोइये है तो वो अपना जो खाना है वो बिगाड़ देंगे। So for Six Sigma project, the ideal size is like 5 to 7 people, which includes the project leader, then this champion, and then team member. So all उसमें आ जाता है 5 to 7। हाँ, अगर कोई स्पेशल केस है और उसमें हमें लेने की जरूरत है तो हम ले सकते हैं, बट आइडियल साइज इज दिस मच। एंड देन टाइमलाइन, हम कब ये एक्टिविटी सारी खत्म करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने ओवरऑल दे दिया कि भाई ये बाय February 2021 हम कर देंगे, लेकिन कब तक हमारा डिफाइन कंप्लीट होगा, कब तक हमारा मेजर कंप्लीट होगा, या जो भी अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं उसके अलग अलग फेजेस है यानी माइलस्टोन्स है, उसको हम कब अचीव करेंगे, तो व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर दैट। सो दैट इज वी हैव टू मेंशन ओवर देयर। अभी ये सारी चीज जो हमारी है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज साइन। ये सब डिटेल एक डॉक्यूमेंट में डालने के बाद यहाँ पे साइन होना चाहिए। अभी किसका साइन चाहिए? एक तो प्रोजेक्ट लीडर का, दूसरा चैंपियन का या फिर एचओडी का, तीसरा मैनेजमेंट का। यानी मैनेजमेंट यानी स्टीयरिंग कमेटी भी बोल सकते हैं या लोकल मैनेजमेंट भी हो सकता है। जैसे रिलायंस जैसी कंपनी में वो मुकेश अंबानी जो है वो यहाँ पे साइन करने नहीं आएंगे, तो उसमें जो लोकल अथॉरिटी होगी या जो भी आपके हु इज लीडिंग दिस एंटायर इम्प्लीमेंटेशन, उनका साइन यहाँ पे चलेगा। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो हम डाल रहे हैं कि इससे हमारा इतना सेविंग होगा, तो अभी वो वैलिडेट कौन करेगा? एज अ लेट्स से हम जो सिक्स सिग्मा के एक्सपर्ट, वो हमारा कोर एरिया नहीं है कि वो कितना ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है, उसका कितना हमें गिनना चाहिए, वो सारी हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। इन दैट वी हैव टू ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है या कोई सीए होता है, कंपनी में भी बहुत बार सीए होते हैं, सो उनका हेल्प हमें लेना है। और दे हैव टू साइन दैट कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट में अगर आप 10% से 1% तक जाएंगे ना, तो आपका ये 10 लाख का पर मंथ बेनिफिट होगा, एंड दैट इज फाइनेंशियली प्रूवन। अभी ये इतना इंफॉर्मेशन अगर हम कोई भी मैनेजमेंट को देते हैं, देन दे विल बी एबल टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट कि भाई ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड देन इमीडिएटली यू विल गेट इट अप्रूव्ड। क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर अप्रूवल करवाना पड़ता है। ये मैनेजमेंट कब साइन करेगा? जब ये सारी डिटेल देख लेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये वाकई में इसके पीछे टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए अप्रूवल हमें जल्दी मिल जाएगा। वन मोर कंपोनेंट विच इज नॉट मेंशन हियर बट इट मे बी बजट। तो ये फाइनेंशियल सेक्शन है, वहां पे बेनिफिट और उसके सामने हम बजट भी बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में इतना हमें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि इसमें लेट्स से इतने लाख का बजट चाहिए होगा। सो दैट आल्सो यू कैन मेंशन
तो मैनेजमेंट के ध्यान में वो भी आएगा कि भाई इसका बेनिफिट ये है, उसके सामने हमारा इन्वेस्टमेंट इतना जाएगा, सो दे कैन हैव द calculation of ROI, return on investment. So accordingly, they can decide whether to go for this project or not. So basically, these are all the elements of the project charter. Now, let us see each of the element in little detail. अभी यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, there are numbers of formats for the project charter. अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई प्रोजेक्ट चार्टर का फॉर्मेट मुझे चाहिए, बहुत सारे फॉर्मेट्स आपके पास आएंगे जो अलग अलग डिजाइन में होंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन कंटेंट करते होंगे. बट अगर आप कंटेंट को ध्यान से स्टडी करेंगे तो ऑलमोस्ट यही सारी इंफॉर्मेशन होगी, या कुछ एक चीजें और होगी, या कुछ एक चीजें कम होगी, बट ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो होगी ही होगी. ठीक है. और यू कैन डेवलप योर ओन फॉर्मेट ऑल्सो, सो नॉट नेसेसरी कि आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करिए, बट अल्टीमेटली ये सारे आंसर्स आप दे तो आप अपना खुद का एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अभी हम ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हर एक एलिमेंट को हम स्टडी करने का ट्राई करते हैं कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व. बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो हम बहुत टाइम से ये सुन सकते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दैट होल्ड्स ट्रू आल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ. क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती है ना, ये डिफाइंड फेज हमारा या प्रोजेक्ट चार्टर में क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे ये डायलेमा में हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया और डिफाइन फेज में ही ये सारी चीजें क्लियर नहीं की, और आगे जाके वो एनालाइज या इंप्रूव फेज में वो प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड पे चला जाता है या फिर वहां पे फेल हो जाता है. सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे ज्यादा एनालिसिस नहीं है, डिफाइन स्टेज पे एनालिसिस के टूल आपको ज्यादा यूज नहीं करने हैं, बट वो आपको वेल स्ट्रक्चर्ड, उसमें आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो बहुत ज्यादा चाहिए होगा. सो दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. और इसमें आपका ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे ना, उतना आपका मेजर में कम जाएगा, उतना आपका एनालिसिस में कम जाएगा और इंप्रूव में भी कम जाएगा. Now, how it should be? So it should be concise, specific, and fact-based. And it should be, we have to avoid the generic and long-winded statements. क्योंकि वो की इश्यूज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं. मैंने बोला ना अभी कि बहुत सारे लोग पूरी स्लाइड भर के अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं या गोल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट या जनरिक इन नेचर नहीं चाहिए. लेट्स से वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेट्स से प्रॉफिटेबिलिटी. अभी नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इज अ जनरिक स्टेटमेंट. We are facing the problem of quality. Problem of quality is a generic statement. We are facing the problem of, let's say, productivity. That is a generic statement unless and until you define like what is productivity for you. Assessments हमें avoid करने चाहिए. It should be ideally focused on a single issue. बहुत बार मैंने ऐसे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे हैं कि जिसमें वो लोग रिजेक्शन की भी बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, डिलीवरी टाइम की बात करते हैं. अभी एक साथ में आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते. सो इन अ सिंगल प्रोजेक्ट योर सिटी क्यू दैट शुड बी ओनली वन. ठीक, उसके लिए आपको बहुत सारे की इश्यूज के ऊपर, लाइक उसमें से जो भी सीवियर है उसको आप लीजिए. सो अगर वो इंटरकनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली एक को इंप्रूव करने से दूसरे भी इंप्रूव होंगे. जैसे मैं अगर रिजेक्शन को रिड्यूस करूंगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि उतना हमारा कम रिजेक्शन जा रहा है. सो अल्टीमेटली इट इज एडिंग टू द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मेरी. सो इफ इट इज कनेक्टेड then it will be automatically improved. But दोनों को साथ में लेके चलेंगे then it will be difficult to manage those projects. So please remember that you are, at a time you are focusing on only single issue. And we have to start with the precise location. जैसे मैंने डिस्कस किया कि भाई ये कहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ठीक है, so location of the problem and then what is happening there. So basically it is a rejection that is happening there. And which is the specific process which is involved. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मशीन नंबर ये या लाइन नंबर ए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप ऐसा बोल सकते हैं. एंड देन वी हैव टू आल्सो ऐड सम सपोर्टिंग फैक्ट्स. मे बी हाउ फ्रीक्वेंटली, अगर हम लेट्स से बात कर रहे हैं कि वी आर फेलिंग द डिलीवरी, सो कितना फ्रीक्वेंटली, बोला 5 में से 2 डिलीवरी हमारी फेल जा रही है, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट. फिर हाउ लॉन्ग, यानी डिले हो रहा है तो कितना डिले हो रहा है. सो वी आर डिलेइंग बाय लेट्स से 5 days in each delivery on an average. That is what is happening. So likewise we have to add some of the supporting facts to make your project's problem statement more effective. You can also show some of the information related to the financial impact. जो मैंने बताया आपको कि भाई
हाउ मच इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो वो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखना चाहिए। उसके बाद है गोल स्टेटमेंट। अभी गोल स्टेटमेंट में हमने ये बहुत बार सुना है कि भाई इट शुड बी अ स्मार्ट गोल, राइट? तो दैट इज वेरी फेमस, स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट में एस मीन्स स्पेसिफिक। नाउ स्पेसिफिक यानी what we have to do and we we are not supposed to do that. So here do's and don'ts के फॉर्म में मैंने लिखा है, we have to set real number. गोल जब भी हम बोलते हैं कि भाई ये 10% से मुझे 1% जाना है, तो that should be a real number, right? Let's say ऐसा नहीं होना चाहिए कि I want to nil the rejection, यानी मैं रिजेक्शन को जीरो कर दूंगा। Now it is ultimately goal, but for this project ये 3-4 महीने में आप जीरो नहीं कर पाएंगे। That is the fact that we have to accept. And according to that, we have to form this goal statement. Yes, ultimately goal is to reach towards zero, but that is not possible in within 3 to 4 months, right? ऐसा भी नहीं करना चाहिए I want to maximize the profit. Now it is very generic, right? In goal statement, if I write down I want to maximize the profit, now what does it mean? What do we mean by this maximize, right? So this we should avoid. It is an ambiguous. It is creating the ambiguity in the statement, so we should avoid that. Then measurable, क्या करना चाहिए? So make sure your goals is trackable. So मैं अगर पूछूं कि भाई ये आपने ठीक है ये 10% रिजेक्शन वाला लिया है, so every month can you monitor it? Every week can you monitor this? So yes, it is trackable. We can monitor this. बट जैसे हम ये मैक्सिमाइज द प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरे ऐसे कोई ले लेते हैं कि हम एम्प्लॉय का मोरल बढ़ा देंगे, उसको ट्रैक नहीं कर सकते। दैट इज नॉट मेजरेबल। हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा देंगे, सो इफ वी हैव सम सिस्टम इन प्लेस टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देन इट्स फाइन, वी कैन ट्रैक इट। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक द गोल। जैसे ब्रांड एंगेजमेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ब्रांड एंगेजमेंट, हम वी विल इंप्रूव द ब्रांड एंगेजमेंट। What do we mean by that? How can we measure that? So it is not measurable. Will increase the social influence. What do we mean by that? It is not, it is an ambiguous statement. We can't measure it. So we should avoid that kind of thing. Achievable. So it should be achievable, and जैसे मैंने बताया कि ये let's say 1% में बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसे ही मुझे let's say I had a dream in the night and I can say that this is the goal. It won't work. So we have to accept that कि भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। So we have to accept those realities. So उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें करना चाहिए। ये 0% कर देंगे, so it is not that this thing. So don't try to take over the world in a night, right? We should avoid this thing. Ideally it should be challenging, but possible भी होना चाहिए, challenging होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल, ये 10% से लेट्स से 8% हमने कर दिया, तो दैट इज द माय गोल एंड व्हिच इज वेरी गुड अचीवमेंट। नो, दिस इज वेरी सिंपल, but it should be possible, like if I like keep it 2% or something like that. Now it depends कि ये 2% ये कहाँ से लेना है। So we have to it depends on case to case basis कि आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में कभी हमने अचीव करे हैं कि नहीं करे हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हिस्टोरिकल हमारा 2% इज द मिनिमम रिजेक्शन, सो उससे थोड़ा सा और इंप्रूव करने का ट्राई करिए कि वी विल गो फॉर द 1%, क्योंकि ये अचीव कर सकते हैं। दैट मींस वी डू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव दिस 2%। सो बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर मेथड लेट अस इंप्रूव अपॉन इट, सो दैट कैन बी पॉसिबल। उसके बाद है रियलिस्टिक। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, you know what you can do and what your team is capable to do this, right? So we have to be honest with it. Unrealistic goals set nahi karne chahiye. So forget any practical hurdles to overcome, so this we should avoid. Many of the time we forget any practical hurdles which are there, so we should not forget that, right? So that should be continuous in our mind, and it should be always time bound. Give yourself a deadline. Don't keep pushing towards your goal like someday we will achieve this 1% or less than 1% rejection. That someday won't be there. It has to be some specific timeline, so that we have to mention there. Now the next is project scoping. We are discussing each of the element one by one with the example. So there is, let's say, direct example ही दिया है मैंने कि an inspector for clothing manufacturer investigate the source of clothing defects to prioritize the improvement project. क्योंकि यहाँ पे ये जो
डिफेक्ट आ रही है, ये कपड़ा जो बना रहे हैं तो उसमें उनको कुछ डिफेक्ट्स आ रही है. नाउ देयर आर मल्टीपल डिफेक्ट्स, बट वेयर टू फोकस, क्योंकि हर एक डिफेक्ट पे एट अ टाइम हम फोकस नहीं कर सकते. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया एंड दे अप्लाइड द पेरेटो चार्ट. तो यहाँ पे देखिए एक पेरेटो चार्ट की एक फाइल है जहाँ पे ये अलग अलग डिफेक्ट्स मेंशन की हुई है कि मिसिंग बटन, लूज थ्रेड, मिसअलाइन फैब्रिक, फैब्रिक फ्लूज, स्टिचिंग एरर, हेमिंग एरर. तो ये सारी टाइप्स ऑफ एरर है. यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी यानी काउंट है, और ये एक डिफेक्ट जो होती है, जैसे एक मिसिंग बटन है तो उसको करेक्ट करने की कॉस्ट कितनी है, तो बोला ₹0.17 या डॉलर जो भी है. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस देन यू विल हैव द आइडिया कि भाई ये करेक्ट करने में कितना अपना कॉस्ट जा रहा है, ये करेक्ट कितने करने में कितना जा रहा है. तो आप देख सकते हैं कि कुछ एक डिफेक्ट ऐसी है कि जिसकी इंटेंसिटी कम है, जैसे ये 23 ही है, लेकिन उसकी जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका कॉस्ट इससे ज्यादा. यहाँ पे 217 है तो वो आप ₹36 में करेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 23 डिफेक्ट को करेक्ट करने में आपको ₹112 स्पेंड करने पड़ रहे हैं. सो बाय either this or either this you can prioritize this. Now it depends on you कि आपके लिए क्या important है, cost या फिर count. So these are the steps. You might be familiar with this. It is done in the Minitab. So ultimately output would be like this. So here you can see the more intensity is with the missing buttons, stitching errors. So if I focus on these two errors, then I'll be able to address 68.5% of the problem in a totality. सो जितने भी टोटल हमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें से ऑलमोस्ट 70% आप बोल सकते हैं कि 70% प्रॉब्लम जो है वो हम सिर्फ ये दो एरर के ऊपर काम करके हम उसको एड्रेस कर सकते हैं. सो इन द स्कोप आई कैन राइट डाउन कि भाई इन दिस प्रोजेक्ट आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस मिसिंग बटन एंड स्टिचिंग एरर. आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस. सो आगे जाके अगर आपको कोई रिपोर्टिंग में पूछता है कि भाई ये लूज थ्रेड है, उसमें तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो आप बोल सकते हो कि वो हमने स्कोप में लिया ही नहीं है क्योंकि वो हमारा आउट ऑफ स्कोप है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्कोपिंग. अभी प्रोजेक्ट स्कोपिंग हर बार पेरेटो से नहीं होना चाहिए, पेरेटो से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अलग टूल भी यूज करने पड़ सकते हैं. कई बार आपको डिसीजन ट्री भी यूज करना पड़ता है. अभी वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मशीन लर्निंग डिसीजन ट्री, बट यू नो लाइक ट्री डायग्राम जो हम बोलते हैं ना, इस तरीके का, जिसमें आपको वो जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट को रखते जाते हैं एंड देन यू डिफाइन, राइट. सो दैट tree mapping also you need to do. So there are several ways to do the project scoping. बहुत बार सिर्फ brainstorming से करना पड़ता है, जैसे ऐसे कोई डेटा नहीं है, but we can go. जैसे मैं एक कंपनी में गया था ग्वालियर. They are into the food manufacturing. जो हम जो केक खाते हैं तो केक में whipped cream लगता है, तो whipped cream बनाने वो बनाते थे, और उसके अलावा भी बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट्स थी. अभी वहां पे उनका एक प्रॉब्लम ऐसा था कि हमें आईपी प्रोटेक्शन जो है, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि उनका रेसिपी उनके लिए सब कुछ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कुछ प्रोजेक्ट करना था कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी है. नाउ इन दैट केस वी डोंट हैव सच डेटा. सो इन दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग से बहुत सारी आपको चीजें करनी पड़ेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट, नेचर ऑफ द प्रोसेस. ये सबके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद हम अगर देखें कि डिफेक्ट एंड मैट्रिक्स, यानी कि हम what is the defect for us. So in this case, for example, let's say rejection percentage might be defect for us. That is what we are measuring. Let's say हम कुछ रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं कि भाई ये करेक्शन करना है सॉफ्टवेयर में, तो ऐसी रिक्वेस्ट आती है हमें क्लाइंट से, और वो रिक्वेस्ट कितने टाइम में क्लियर होती है, या फिर कस्टमर कंप्लेंट रिजोल्यूशन टाइम. सो दैट इज कंप्लेंट रिजोल्यूशन टाइम यू कैन कंसीडर. So let's say अभी 5 days का है, ठीक है. So that is defect for us. We need to improve from that. We need to reduce from this to let's say 1 day or 2 days. Now, how the defect can be measured? So how this rejection will be measured? So we have to write down clear-cut formula that total rejection multiplied by 100 divided by total production. So rejection percentage will be found by using this formula. Now here in the second example, how it would be measured? So time from the request is submitted. यानी जब कस्टमर ने लेट्स से 1 अक्टूबर 2020 को 11:30 पे उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट किया, और रिजोल्व कब हुआ, तो बोला 6 अक्टूबर 2020 4:30 इन द इवनिंग PM उसमें रिजोल्व हुआ. तो इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी माय रिजोल्यूशन टाइम और रिक्वेस्ट क्लियरिंग टाइम. सो दिस वी हैव टू क्लियरली मेंशन दैट जब हमें मिला तब से लेकर रिजोल्व हुआ तब का जो डिफरेंस है उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ
कैलकुलेटिंग दिस टाइम फॉर द रिक्वेस्ट क्लियरिंग। उसके बाद व्हेन डू यू कॉल इट डिफेक्ट? ठीक है, यहाँ पे आपका ये 6 दिन लगा, वो सारी चीजें हैं। सो आप डिफेक्ट कब बोलेंगे? क्योंकि टाइम तो जीरो नहीं होगा ना। ठीक है, रिजेक्शन के एस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि जब भी रिजेक्शन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि भाई देयर इज अ डिफेक्ट, any product which is not acceptable to the customer, that is defect for us. But for this case, so there is some minimum process time. तो बोला 2 दिन तो हमारे लगने ही है, क्योंकि जब आती है उसके बाद हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, दे यूज टू स्टडी दैट एंड देन दे यूज टू रिप्लाई इट। सो उसमें 2 दिन चले जाते हैं, बट 2 दिन से ज्यादा होगा तो हमारे लिए डिफेक्ट है। सो लेट्स से 100 रिक्वेस्ट हमारी जो है वो हमारे पास आई, उसमें से ऐसी कितनी रिक्वेस्ट है कि जो 2 दिन से ज्यादा लगा है उसमें? तो बोला 80 रिक्वेस्ट आर देयर कि जिसमें 2 डेज से ज्यादा लगा। सो ये कैसा हुआ कि हमने 100 प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस की, उसमें से 80 प्रोडक्ट है उसको हमने रिजेक्ट करना पड़ा। ठीक है, सो एनी रिक्वेस्ट विच इज टेकिंग मोर देन 2 days देन इट इज डिफेक्ट फॉर अस। सो यहाँ पे 80% डिफेक्टिव है, ओनली 20% इज ओके, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस नीड्स टू बी क्लियरली मेंशन ओवर देयर। तो ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट चार्टर जब बनाते हैं तो उसमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कस्टमर। नाउ देयर इज वेरी फेमस कोट ऑफ महात्मा गांधी दैट अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। यानी बहुत बार लगता है ना कि भाई कस्टमर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। He is not an interruption in our work. बहुत बार लगता है ना कि ये कस्टमर डिस्टर्ब कर रहा है, बट इट इज नॉट इंटरप्शन। he is actually the purpose of it, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसका पर्पस है, कस्टमर है तो हम काम कर रहे हैं। he is not the outsider in our business। हम बहुत बार कहते हैं ना कि वो एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है। he is not outsider, he is a part of our business। we are not doing him a favor by serving him, actually he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so। सो ये प्रिंसिपल जो है वो हमें थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स सिग्मा इज ऑल अबाउट मेकिंग योर कस्टमर एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड देन दिस बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट है, दैट इज अल्टीमेट बाय प्रोडक्ट यू कैन से। आप अगर कस्टमर को खुश रख सकते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। एंड देयर इज अनदर थिंग, लाइक इट टेक्स मंथ्स टू फाइंड अ कस्टमर बट सेकंड टू लूज वन। ठीक है, वो कस्टमर बनाने में आपको महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से वो डिससेटिस्फाइड होता है तो विद इन कपल ऑफ सेकंड्स आप उसको लूज कर देंगे। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड एंड वी हैव टू लिसन टू द कस्टमर। हियर कस्टमर मींस external as well as internal। then financial impact that we are talking about। so let's say there are several aspect। यहाँ पे हम दो मेनली चीजें बात करेंगे कि financial impact can be in the form of hard saving and in the form of सॉफ्ट सेविंग। दोनों चीजें क्या है वो हम वन बाय वन देखते हैं। कि जो हार्ड सेविंग जो है, जैसे हमने कोई कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट से, तो उसको हम हार्ड सेविंग बोलते हैं। जैसे आपने एनर्जी सेविंग किया, अभी उनका लेट्स से एनर्जी कॉस्ट इतना लग रहा है, वहां से आपने रिड्यूस किया, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड सेविंग, विच इज गो इन द कॉस्ट रिडक्शन। लेट्स से रॉ मटेरियल का कुछ सेविंग हो रहा है प्रोजेक्ट से, देन इट इज अ कॉस्ट रिडक्शन। रिड्यूस द रिजेक्शन or reduce the repair or the rework, then it is also a cost reduction। बहुत बार क्या होता है कि हम रेवेन्यू एनहांस करते हैं, जैसे रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली उसकी रेवेन्यू बढ़ती है। सो अगर हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ही उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि एग्जिस्टिंग लेट्स से अभी 10 मशीन से पहले वो लोग महीने के 5000 यूनिट बना पा रहे थे 10 मशीन से, और लेट्स से 200 मैन पावर है, उससे वो 5000 यूनिट बना रहे थे। अभी आपने कुछ प्रोजेक्ट किया और 10 मशीन से ही 200 मैन पावर से ही आपने वो इसको इंक्रीज करके 7000 कर दिया, तो अभी एडिशनल जो 2000 हुआ उसको अभी मार्केट में वो सेल कर पाएंगे। अभी वो सेल करेंगे तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। सो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट गोज अंडर द रेवेन्यू एनहांसमेंट। अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट ही है, लेकिन उसका बेनिफिट है वो रेवेन्यू एनहांसमेंट की ओर फोकस करता है, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर नहीं, बट रेवेन्यू एनहांसमेंट। सिमिलरली फॉर द यील्ड इंप्रूवमेंट, अभी 80% है उसका आप 90% करेंगे, सो व्हाटएवर एडिशनल प्रोडक्शन इज देयर, दे विल बी एबल टू सेल इन द मार्केट एंड दे विल बी एबल टू एनहांस द रेवेन्यू। सो दिस इज हाउ इट विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद है कैश फ्लो इंप्रूवमेंट। बहुत बार ऐसा प्रोजेक्ट भी लेना पड़ता है कि भाई हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, दैट इज नॉन मूविंग। नॉन मूविंग यानी
बहुत टाइम से पड़ी है, पिछले 1 साल से ये इन्वेंट्री वैसी की वैसी पड़ी है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं आया है। अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं कैसे भी करके प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद, तो उसका कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स से लेट रिसीवेबल, यानी हमें जो अपने कस्टमर से जो पैसा आता है वो लेट्स से ऑन एन एवरेज डिलीवरी के बाद 30 दिन में आता है, उसको कैसे भी करके हम उसको 20 दिन या 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसका रोटेशन साइकिल जो है वो कैसा होगा, इंप्रूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा जो सप्लायर है उसको पेमेंट हमें 1 हफ्ते में विद इन 1 वीक देना है, उसकी जगह पे उसको हम 15 डेज कर सकते हैं, तो उसका भी हमें कैश फ्लो में बेनिफिट हो सकता है। या फिर हम रिड्यूस साइकिल टाइम करते हैं, देन ऑल्सो इट विल इंप्रूव योर कैश फ्लो। एंड देन कॉस्ट एंड कैपिटल अवॉइडेंस। सो बहुत बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आप अगर ऑप्टिमाइज करते हो, जैसे ओई ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी अगर आप इंप्रूव करते हो, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई अभी 10 मशीन से जो काम हो रहा है उसमें आपने इंप्रूवमेंट किया, तो अभी आगे जाके वो 11 मशीन का काम कर पाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस व्हेनेवर डिमांड इज देयर यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इनटू द न्यू मशीन, so that is the capital expenditure that you are avoiding, so that is cost and capital avoidance by doing that project. You can also have that project kind of reduce maintenance cost. Now if we look at the soft savings are generally the savings which can't be directly measured in terms of money. ये सारी चीजें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें मनी में हम नहीं कर सकते। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सो लेट्स से कोई प्रोजेक्ट से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है या फिर हमारा वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज होता है, तो वी कांट हैव डायरेक्ट ट्रैक ओवर दोस फिगर्स, बट वी कैन फील दैट कि हाँ अभी ये रेफरेंसेस मिलने ज्यादा हो गए हैं, या फिर नाउ कस्टमर इज अप्रिशिएटिंग अस। उसके बाद है कस्टमर लॉयल्टी। तो बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर विल बाय आवर प्रोडक्ट्स ओनली, कि भाई जब भी हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो भाई इसी से लेंगे, तो दैट इज लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। अभी वो सेटिस्फाइड होंगे तभी जाके हमारे लॉयल बनेंगे, या फिर दे विल बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर। कि कोई अगर पूछता है कि भाई ये चीज मुझे लेनी है या ये सर्विस मुझे चाहिए तो कहाँ से लूं, तो हम सजेस्ट करेंगे कि भाई मैंने ये यूज किया है आप उसको करिए। मोबाइल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, क्योंकि आप अगर खुद का एनालिसिस करिए, आई एम नॉट आस्किंग टू यू, बट आप खुद एनालिसिस करिए कि आपने जो मोबाइल बाय किया है, लेट्स आपके पास एमआई का हो, रियलमी का हो, आईफोन हो या कोई भी हो, क्या वो आईफोन वाला या रियलमी वाला आपके पास आया था कि आप मेरा ये फोन लीजिए, या फिर आपके कोई दोस्त ने आपको सजेस्ट किया था या आपके रिलेटिव ने सजेस्ट किया था कि भाई ये फोन लेने जैसा है, मैं बोलता हूं ना तो आंख बंद करके ले ले, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट इज कस्टमर इज एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, सो वो कब होगा, जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे तब होगा। जैसे कस्टमर इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही एम्प्लॉय इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो उनका सेटिस्फेक्शन भी इतना ही मायने रखता है। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट कैसे होते हैं कि जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एंड अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनरली जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ मंडे फीवर। अरे यार फिर से मंडे आ गया, अभी काम पे जाना पड़ेगा। एंड मंडे में सबकी जो प्रोडक्टिविटी है, एक सर्वे हुआ था कि मंडे को जनरली एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है वो डाउन रहती है, क्योंकि वो काम करने के मूड में ही नहीं होते। तो बेसिकली एटमोस्फियर कंपनी का ऐसा होना चाहिए कि वहां पे हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए एक्चुअली, कि कब मंडे आए और कब हम काम पे जाए। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अगर वो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा तो उनको मंडे का फीवर नहीं होगा, क्योंकि दे विल एंजॉय डूइंग द वर्क। सो वो मंडे हो या सैटरडे हो, the feeling would be almost same. And the last is brand image, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो आपकी ब्रांड इमेज में इंप्रूवमेंट लाते हैं, बट उसको आप मेजर नहीं कर सकते, बट इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ brand image in the market. So these are all the saving, which is in terms of some of them are hard saving and some of them are soft saving. टीम स्ट्रक्चर एंड रोल। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखी है कि वो क्या क्या हो सकता है। बट इन टीम जनरली देयर इज अ प्रोजेक्ट लीडर एंड देन देयर इज अ चैंपियन, प्रोसेस ओनर। जो प्रोसेस में डिसीजन कोई भी लेना है तो देयर वुड बी वन पर्सन हु इज ओनिंग द प्रोसेस, तो उसको पूछ के उनको कॉन्फिडेंस में लेके आप प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे ही जाके वो प्रोसेस का आपने वो लेट्स से कुछ फाइंड आउट किया कि यहाँ पे प्रेशर का प्रॉब्लम है और जाके चलिए प्रेशर बढ़ा देते हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। प्रोसेस ओनर को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनके साथ डिस्कस करना है कि दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड एंड इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं। तो एंड देन यू कैन गो फॉर द एक्सपेरिमेंट। सो प्रोसेस ओनर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टीम। एंड देन प्रोजेक्ट लीडर,
So they will basically responsible to lead the project. So वो पूरा जो it is actually क्या है कि उसमें मैनेजमेंट होता है, चैंपियन होते हैं, प्रोसेस ओनर होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, ये सबको छोड़ने का काम कौन करता है? प्रोजेक्ट लीडर। सो उनका काम है कि इनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैनेजमेंट मीटिंग में ये प्रोजेक्ट लीडर जाके प्रेजेंट करेगा और मैनेजमेंट बोलेगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, तो ये सारी एक्सपेक्टेशन है वो कहाँ पे आएगी? ये अपने टीम के साथ वो शेयर करेंगे। फिर ब्लैक बेल्ट, अगर ये सिक्स सिग्मा में ब्लैक Yes, बेल्ट, Kiran, last 10 minutes. Because Okay, okay, sir. already we have time is 7 to 8. We are at 8:20. So please. Okay, yeah, sure, sir. So let's say black belt can be one of the part of it, and then this team member is also part of the team. So that is the ideal structure. Now you can read this timeline. A goal without a timeline is just a dream. So in any project timeline has to be there, and it should be phase wise. ऐसा नहीं है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइमलाइन दे दिया, ऐसा नहीं, फेज वाइज होना चाहिए कि भाई ये टास्क हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ये टास्क है वो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. सो इट शुड बी लाइक दैट. ये स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी वही है. जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है. और ये सारी चीजें अभी इसी का हम एक एग्जांपल देखते हैं, एंड देन आई थिंक दैट इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है. सो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. जो हम फ्लोरिंग में जो टाइल्स लगाते हैं वो एक कंपनी बनाती है, तो हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स से सिंस लास्ट 1 year वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाई रिजेक्शन in our production department. So यहाँ पे what is the problem? So that is high rejection. Where is the problem? In production department. Since how long it is a problem? So that is by 1 year. Okay. Now how much it is? So that is 10%. It is as high as 10%, and which is attributing to the loss of 25 lakh rupees. So it is an impact. So you can see all the 5 questions that I was mentioning, that is answered, and it is very concise format. आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है. इतने छोटे एक पैराग्राफ में पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस लिए जरूरी है, ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं इसके गोल स्टेटमेंट की ओर. तो हमारा कैसे लिखेंगे कि टू रिड्यूस रिजेक्शन फ्रॉम 10% टू 2% बाय सितंबर 2020, या फिर जो भी टाइमलाइन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. बट इट शुड बी लाइक दिस. No complex statement is there, no so much of words, and no so much of theories are there. Simple and sweet. Project scope. So here process in scope is press to kiln. So there is process 1, process 2, process 3, process 4, process 5 are there. So let's say we are taking this in scope. We are not talking about this, we are not talking about this. So whatever is in the scope that we can mention over here. Okay. उसमें ये प्रोसेस इन स्कोप, देन प्रोडक्ट इन स्कोप. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से ए कैटेगरीज ऑफ आइटम, क्योंकि ए कैटेगरीज ऑफ आइटम आर प्रीमियम आइटम. बी एंड सी वो हम बाद में भी देख सकते हैं, बट ए कैटेगरी के आइटम में रिजेक्शन हो रहा है, दैट मींस वी आर लूजिंग सो मच मनी. एंड देन मशीन. सो वी आर हैविंग लेट्स से बहुत सारे, ये प्रेस और किलन में भी बहुत सारे मशीन्स है, तो उसमें हम प्रेस में ये 1, 2 एंड किलन में हम 1, 2 मशीन लेंगे. 3 नंबर का हम नहीं लेंगे अभी. नाउ दैट कैन बी बेस्ड ऑन द Pareto chart or some analysis or some logic behind it. Now यहाँ पे हमारा CTQ यानी critical to quality क्या है? So that is rejection percentage. Defect definition क्या है? So any product which is not meeting the specification, that means it is rejection for us, and that is defect for us. And what is the baseline? Baseline यानी current level कितना है? तो बोला 10% है. अभी 10% आया कहाँ से? सो हमने जनवरी 20 से लेके मई 20 का डेटा जो लिया, उससे हमें पता चला कि ऑन एन एवरेज 10% रिजेक्शन जा रहा है. वैसे हमारे माइंड में आया और हमने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. या फिर किसी ने बोल दिया और हमने लिख दिया. कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं बोलता हूँ कि ऐसा होता है. तो वी डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, वी ट्रस्ट ऑन डेटा ओनली. सो वी हैव टू टेक दिस डेटा एंड वी हैव टू राइट लाइक दिस. उसके बाद है कस्टमर. तो इंटरनल कस्टमर कौन है? तो बोला ये किलन प्रोसेस के बाद आता है हमारा पॉलिशिंग डिपार्टमेंट. सो दे आर आवर कस्टमर. एंड एक्सटर्नल कस्टमर कौन है? तो जो बिल्डर्स है कि जो हमसे ये टाइल्स खरीदते हैं, या फिर एंड यूजर है जो हमसे टाइल खरीदते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल कस्टमर है. फाइनेंशियल इंपैक्ट.
अगर हम ये 10% से 2% पर अचीव कर पाएंगे, then we'll be able to save 20 lakh rupees as a hard saving and 2 lakhs rupees will be saved as a handling of the rejection. क्योंकि इतना सारा रिजेक्शन निकल रहा है तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर रखने पड़ेंगे, कुछ आदमी को रखना पड़ेगा कि भाई ये सारी जो रिजेक्शन की हुई टाइल्स है उसको लेके डंप करे, तो उसके पीछे भी आपका सालाना 2 लाख का खर्चा हो जाता है, तो वो भी आपका सेव होगा। प्लस 5 lakhs rupees will be added to the profit, क्योंकि हम इतना ज्यादा सेव कर पाएंगे तो प्रॉफिट विल बी इंक्रीज। बट ये सारी चीजें आपको कौन सजेस्ट करेगा? आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपको इसमें गाइड कर सकता है। एंड देन देयर इज अ टीम, सो टीम में लीडर, चैंपियन, प्रोसेस ओनर एंड देन ब्लैक बेल्ट एंड टीम मेंबर्स कैन बी 1 2 3 ऐसे करके आपके हो सकते हैं। एंड टाइमलाइन, डिफाइन फेज कब तक कंप्लीट करेंगे, तो बोला ये टाइम तक, मेजर फेज तो ये टाइम तक, एनालाइज फेज ये टाइम तक, इंप्रूव फेज ये टाइम तक, कंट्रोल फेज ये टाइम तक, एंड देयर विल बी अ sign on this document. So this is how this project charter is built. So that was the end of the session. That is what I wanted to convey to you. Now if you have any question related to the topic that we covered, so you can ask. Yes, nice presentation, Hiren. Thank you, sir. You have in fact started from basic to basic idea of the problem statement. So you also cover the many things of the Six Sigma methodology simultaneously, and how in a one or two slide one can define their entire process of project structure or the project charter. I would like to ask the audience any questions regarding this. Anyone? Any question? Then it is open for all. Question नहीं है, you are audible sir, but question नहीं है, उसका दो आउटकम हो सकते हैं, या तो सबको समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। So here what is the case? No, it's a very informative session. So all are understand. Okay. So स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा पूछना चाहिए। हो सकता है कि मेरे पास शायद आंसर अभी का अभी ना भी हो, बट आप यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सो कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा, नई चीज। Okay, or have you shared the link of presentation? Just a second, I'm just sharing. And also share the link for the certificate so that yes, they can process. And meanwhile, if they have questions, so they may ask the question. Yes, okay. So मैंने yeah, please. मैंने वो मटेरियल का लिंक जो है वो चैट बॉक्स में डाल दिया है। So everyone is requested to download that. Immediately वो डाउनलोड हो जाएगा। And then let me also share the link for the certificate. Yes sir, आप कुछ कह रहे थे सर? Yeah. और इसका जो लास्ट लेक्चर अपना हुआ उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेगा? जैसे ये भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुआ है। यस सर, तो मैं आपको वो भी लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये सारा हम यूट्यूब चैनल पे चढ़ाते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट लिंक ऑल्सो। ये चैनल जो है हमारा यूट्यूब का, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो सेशन रहते हैं कि जिसको हम अपलोड करते रहते हैं, तो यू गेट अपडेट्स। सो ये भी जो रिकॉर्डिंग है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो रुपल मैडम, Yes sir. इन लोगों का ये प्रोसेस हो जाए डाउनलोडिंग का एंड फॉर्म भरने का, तो प्लीज आफ्टर completion of the task, please give the vote of thanks for this session. Okay, Jyoti madam, any questions? Jyoti madam, anything would you like to add from your side? Yeah, I have a suggestion for all the students. Okay. And it is in the chat box. And it was a very nice presentation. And talking about Monday fever,
So I hope our students will not be feeling it, because on Sunday also we are having a live lecture. Yes, So correct, madam. we will not be having Monday fever, right? Yes, Students? yes, ma'am. Okay, so this is suggestion for you. This is suggestion for you. Yeah, right now your project is selection of project. Okay. So if you want to learn project charter really, then you can learn it by implementation. And so what is your project charter? Project charter is about the project selection of MSc project. So if you think on this line and you listen to the presentation once again, then perhaps you'll be able to make use of it. So this is from my side. Okay. Okay, nice suggestion, madam, because they have the last semester project. They are almost going Everyone to has finish this. their project in the third semester. Okay. So I hope everyone has downloaded the presentation. Kindly go through the presentation. Also go through the recorded version of the lectures. It may be helpful to you. Sometimes if something is missed, we can recover from this. And Jyoti madam has rightly said that you start thinking of defining your project charter or the selection of the project so that it will be beneficial to you at the semester 4. I hope everyone has fill up the form because without the form you will not able to get the certificate. Okay, initially registrations are different and later on the many others have joined. I don't know, some students are not from our department and they're asking to join. Who is sharing them? Swapnil? Yes, sir. Yeah, some of the students are not from our department and they are asking me to join. सर नेटवर्क इशू हो सकता है. नहीं पर दूसरे कहाँ से आएंगे नेटवर्क इश्यू है तो ठीक है तो जब भी ये आपको ध्यान रखना है कि हम जो शेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि ओनली बिकॉज दिस इज द प्रोग्राम फॉर आवर स्टूडेंट ओनली आवर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट नॉट फॉर जनरल ओके तो थोड़ा देखिएगा ध्यान रखिएगा ठीक है Yes, sir. हाँ रुपल मैडम प्लीज कन्वे द वोट ऑफ थिंग्स इफ देयर आर नो क्वेश्चन Okay, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to give thank you to Mr. Hiran Kakkar. Hiran Kakkar. First, I proudly feel proud that one organization have founder to the business associate. All are from Department of Statistics. Yeah, This is that the is really great, and in fact, I'm really happy that Mr. Lalit has joined Hiren Kakkar. So current batch just pass out the applied statistics students. Lalit has joined the state modeler. So what's appreciable, and thank you Hiren for giving the opportunity to our own alumni. So pleasure is all mine, sir. I'm always there. and thank you, Hiren Bhai, for your informative session. As I have personally experienced that many students are there from those who are doing Six Sigma project when they are in the fourth semester. They have found difficulties to write down the project charter first because we know that this is the one chapter, or you can say that one abstract of all whole projects that company demanded for us, that what are your problems, how you have to frame the smart goal, as you explain very well that the it must be require a specific, measurable, achievables, attainables, realistic and time bound. It is very important in all projects, not only a Six Sigma, but in all projects that ma'am give us one task also to all students, that you have to prepare your project charters, fine, and they
try for fast. We are I thank to you behalf of the Department of Statistics that you are always ready to give us your knowledge and that added in our students things and the requirement informations. We are thank you once again for giving us such understanding and informative session. Thank you. Thank you so Thank you, much. Hiren, for the session, and thank you, Rupal Madam, for a vote of time. Hiren, can you spare 2 minutes to share your experience of recent industry? Sure, sir. Yeah, sure, sir. I recently visited. This is for everyone, not only for QP student or not only for statistics, pure statistics, but it is going to helpful to you. I recently, Mr. Lalit Alone was there with me in this training. So I recently started one training in one of the leading chemical company, whose turnover is 35,000 crore. Group turnover is 35,000 crore. So in that they are using R. Now they want to go for the R. Till now they were using the Minitab and Power BI and this Excel. But now you can say you are having that skill. आप R सीख रहे हो. That is part of your syllabus. R and Python and all that you are learning. So industry में अभी सारी ये requirement आ रही है. Now basically what they were looking for is they are having a huge amount of data. Huge amount in the sense they are collecting information about 400 to 500 variables, and those variables data is captured every minute. Now you can see what in a single day there are 1440 minutes, और वो हर एक मिनट पे 400 से 500 पैरामीटर का डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है. So you can see what is the size of the data. Now in Excel or in Minitab or even in SPSS, अगर मैं एक महीने का डेटा भी डालूंगा ना, then it will be very much difficult to manage. That can be handled by R and this Python. So now this industries are looking for those experts कि जो R में काम कर सकते हैं, जो Python में काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को they are looking for that. So ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्किल है, उसको शार्पन करिएगा. अभी उसमें मैं आपको कुछ एक हिंट देता हूँ कि जो जिस पे आपका ग्रिप होना ही चाहिए, वो ग्रिप होगा ना तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है. जैसे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग, भले ही हम पढ़ते हैं, हम मानते भी है कि भाई ये डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, बट रियल सेंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे इतना क्लीन डेटा जो हम केगल से लेते हैं या यूसीआई डेटा रिपोजिटरी से लेते हैं, उतना क्लीन डेटा इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा. सो मेजोरिटी ऑफ योर टाइम, जब भी आप ऐसे कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो मेजोरिटी ऑफ योर टाइम विल गो इन अ डेटा क्लीनिंग. So missing values will be there, error will be there. Let's say nomenclature, कोई बरोड़ा कैसे लिखता है, so कोई स्मॉल में लिखेगा, कोई कैपिटल में लिखेगा, कोई बी कैपिटल करेगा, कोई बी स्मॉल करके सारी चीजें कैपिटल करेगा. So all these things will be there in the real data. अभी हम जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वो अगर वो स्पेलिंग केस सेंसिटिव है तो स्पेलिंग में भी इधर उधर, केस में भी इधर उधर है, then it will consider let's say different categories. So वो सब आपको काम करना पड़ेगा. That is a part of data pre-processing. Believe me, your 80% of the time will be spent on data pre-processing, and then only 20% for the model building. क्योंकि मॉडल बिल्डिंग के लिए आपको पता है कि R में या Python में कुछ एक लाइन ऑफ कोड लिख के भी हमारा मॉडल बिल्डिंग हो जाता है, बट उससे पहले डेटा को मॉडल बिल्डिंग के लिए रेडी करना, that is very much important. और वहां पे ये सारे जो सीनियर लेवल के लोग थे वो भी वहां पे ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बैठे थे, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था सर से. इवन दिस नाउ इंडस्ट्री के वर्जन, अगर हम कुछ चांस मिलेगा तो हम ये इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 या इंडस्ट्री 4.0 जो है अभी का बज़वर्ड, उसके ऊपर भी कभी लेक्चर रखेंगे, तो इन दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन दैट. बट करंटली इंडस्ट्री 4.0 इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट दैट दे आर वर्किंग ऑन. इंडस्ट्री 4.0 यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, देन मशीन लर्निंग, ये सारी चीजों को कंबाइन करके सारी चीजें ऑटोमेट करना. तो ये ट्रेनिंग में रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है उनका जो पर्सन थे, who is handling all 35 plants throughout the globe, he was the part of the training. और उनको अभी आगे जाके ये सब R में, Python में ये सब इंटीग्रेट करना है कि हमारी प्रोसेस में हमें ये R and Python ही यूज करना है, क्योंकि we are like fed up with the all other tools, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते, हमारा पर्पस सर्व नहीं कर पा रहे. So I would recommend you to sharpen your skill on this R and Python,
it is definitely going to help you when you go for the job, or you go into the market, and that will differentiate you from the other. और उसमें हो सके उतना प्रोजेक्ट्स ज्यादा करिए, यानी आप डमी प्रोजेक्ट लीजिए। डमी यानी केगल से कोई डेटा सेट लिया या यूसीआई से लिया या कहीं से भी मिलता है, डेटा लीजिए, उसके ऊपर काम करिए। भले ही किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी ने प्रोजेक्ट आपको नहीं दिया है, आपको करना है वो। So that is what my experience and my recommendation to all of you. So I Thank think that would be helpful to you, sir. Yes, yes. Thank you, Hiren, for sharing your experience at the leading chemical industry. I would like to say Swapnil, GS of the department. Say a Hi, few yes, sir. words. Yeah. Thank you, Rengakar, sir. Thank you. Hello. Thank you. Yeah, thank yeah. you. You are audible. Please. थैंक यू हिरेन सर, आपने जो प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताया और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड थैंक्स टू जेएमडी मैम, डीपीआर सर एंड रूपल मैम एंड फैकल्टी। आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो आपने वेबिनार रखा, ये हमें लास्ट सेम में जाके बहुत हेल्पफुल होगा, एंड थैंक यू। Thank you so much. Thank you, one and all. And let us execute the suggestions given by the Hiren sir as well as the Jyoti madam. I hope this suggestion will help all of you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Everyone have to leave the meet. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.